السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کیسز کی جملہ تعداد 59,03,933 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے ہفتے کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے 85,362 نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور 1,089 مریض اس جان لیوا وائرس سے تاب نہ لگ کر فوت ہو چکے ہیں۔ ملک میں مرنے والوں کی جملہ تعداد 93,389 ہو گئی ہے۔ سشانت سنگھ راجپوت کیس سے ڈرگز کیس میں شامل ہونے کے بعد بہت سارے بڑے نام تفتیشی ایجنسیوں کے رائڈر پر ہیں۔ بالی ووڈ اداکارہ دیپیکا پڈوکون ہفتے کی صبح نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے دفتر پہنچ گئی ہے۔ دیپیکا منشیات کے سلسلے سے متعلق سوالات کے جواب دے رہی ہیں۔ بالی ووڈ ڈرگز سنڈیکیٹ کی تحقیقات میں آج کا دن بہت اہم سمجھا جا رہا ہے۔ آج بیک وقت 3 اداکاروں سے پوچھ گچھ کرنا ہے۔ دیپیکا کے علاوہ سارا علی خان اور شردھا کپور کو بھی پوچھ گچھ کے لیے آج ہی بلایا گیا ہے۔ بہار اسمبلی انتخابات کے لیے رائے دہی 28 اکتوبر، 3 نومبر اور 7 نومبر کو 3 مراحل میں ہوگی اور 10 نومبر کو ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کیا ہے۔ کووڈ-19 وبا کے دوران دنیا بھر میں یہ ایک سب سے بڑے انتخابات ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سنیل اروڑا نے 243 رکنی بہار اسمبلی کے لیے انتخابی شیڈول کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ووٹنگ حسب روایت صبح 7 بجے سے شروع ہوگی، لیکن اس میں شام 6 بجے تک 1 گھنٹے کے لیے توسیع دی جائے گی۔ تاہم بائیں بازو انتہا پسندی سے متاثرہ علاقوں میں یہ توسیع نہیں ہوگی۔ آخری 1 گھنٹے میں کووڈ-19 مریضوں کو ووٹ کی سہولت دینے کے لیے 1 گھنٹے کی توسیع کی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک درخواست پر سماعت سے انکار کر دیا جس میں کووڈ-19 کے پیش نظر بہار اسمبلی انتخابات ملتوی کرنے کی ہدایت دینے کی خواہش کی گئی تھی۔ جسٹس اشوک بھوشن کی زیر قیادت سپریم کورٹ کی بینچ نے الیکشن کمیشن کے خلاف اجے کمار کی جانب سے دائر کردہ درخواست کی سماعت سے انکار کر دیا۔ بینچ نے کہا کہ ہم اس درخواست کی سماعت نہیں چاہتے اور اسے مسترد سمجھا جائے۔ بینچ نے کہا کہ متعلق عہدیدار صورتحال کے مطابق احتیاطی اقدامات کر رہے ہیں۔ بہار میں 2 اصل سیاسی اتحادوں کے بارے میں غیر یقینی برقرار ہے اور کئی جماعتیں اب بھی اپنے فیصلوں پر غور کر رہی ہے۔ حالانکہ الیکشن کمیشن نے اسمبلی انتخابات کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ NDA حلیف لوک جن شکتی پارٹی نے اب تک اپنا موقف واضح نہیں کیا ہے۔ اس نے اشارہ دیا ہے کہ وہ 143 نشستوں پر مقابلہ کرے گی، جن میں وہ سیٹیں بھی شامل ہیں جہاں سے NDA کی ایک رکن JDU بھی میدان میں اترنے والی ہے۔ لالو پرساد یادو کی RJD اور کانگریس کے اپوزیشن اتحاد کے حالات بھی غیر یقینی ہیں کیونکہ ان کی 2 چھوٹی اتحادی جماعتیں علیحدگی اختیار کر سکتی ہیں۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان وراٹ کوہلی اور ان کی اہلیہ انوشکا شرما کے بارے میں ایک تبصرے کے لیے سنیل گواسکر ایک تنازع کا مرکز بن گئے ہیں، لیکن عظیم بیٹسمین نے کہا ہے کہ ان کے ریمارکس کی غلط ترجمانی کی گئی ہے۔ جمعرات کو راجستھان رائلز بنگلورو اور کنگز 11 پنجاب کے درمیان IPL میچ میں کوہلی کچھ پھیکے رہے۔ انہوں نے حریف کپتان KL راہل کے 2 کیچ چھوڑ دیے اور 5 گیندوں میں صرف 1 رن بنایا، جس پر گواسکر نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے دوران کوہلی نے صرف انوشکا کی بالنگ کا سامنا کیا اور اس کا اثر دکھ رہا ہے۔ تاہم کوہلی اور انوشکا کے فینس کو یہ ریمارکس اچھے نہیں لگے اور بعض مداحوں نے گواسکر کو اسٹار سپورٹس کامنٹری پینل سے ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ ان فینس نے سوشل میڈیا پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ انوشکا شرما نے اپنے انسٹاگرام پوسٹ پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ گواسکر کا بیان بدمزگی پیدا کرتا ہے۔ انہیں اس بات پر افسوس ہے کہ ان جیسی قابل احترام شخصیت نے غیر ضروری طور پر ان کے نام کو گھسیٹا ہے۔ برطانوی ٹیلی کام کمپنی ووڈافون گروپ نے حکومت ہند کے خلاف ٹیکس کی لڑائی جیت لی، جس نے 22,100 کروڑ روپے کا مطالبہ کیا تھا۔ ایک بین الاقوامی مصالحتی ٹریبونل نے فیصلہ کیا ہے کہ ماضی میں ہندوستان کے ٹیکس کا مطالبہ باہمی سرمایہ کاری تحفظ سمجھوتے کے تحت ایک منصفانہ معاہدے کی خلاف ورزی تھا۔ برٹش کمپنی نے ایک بیان میں کہا کہ ووڈافون توثیق کرتی ہے کہ انویسٹمنٹ ٹریٹی ٹریبونل نے ووڈافون کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اپوزیشن پر کسانوں کو گمراہ کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں اپنے خود پسند مفادات کے حصول کے لیے ان کی حکومت کو بدنام کرنے کسانوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ آزادی کے بعد دہائیوں تک کسانوں اور مزدوروں کی ترقی کے نام پر ملک اور ریاستوں میں کئی حکومتیں بنی ہیں، لیکن ان کے مسائل حل نہیں کیے گئے۔ مودی نے جن سنگھ کے بانیوں میں سے ایک پنڈت دین دیال اپادھیائے کی جینتی کے موقع پر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بھارتیہ جنتا پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں، مزدوروں اور خواتین کی فلاح و بہبود کے نام پر کھوکھلے نعرے دیے گئے، انہیں محض وعدوں اور قوانین میں الجھا رکھا گیا۔ شاہین باغ کے احتجاج کی قیادت کرنے والی بلقیس بانو نے کہا کہ میں وزیراعظم نریندر مودی کو ٹائمز میگزین کی 100 نہایت بااثر افراد کی فہرست میں شمولیت کے لیے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ وہ میرا بیٹا ہے۔
82 साला बिल्किस का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। उन्होंने कहा कि अगर वो मुझे पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरी बहन ने इसे जन्म दिया है। मैं इसकी उम्र दराजी और खुशी के लिए दुआ करती हूँ। शाहीन बाग की दादी के नाम से मशहूर 82 साला बिल्किस ने कहा कि जिस तरह से मुझे एजाज़ दिया गया है मैं इस पर बहुत खुश हूँ, अगरचे कि मुझे इसकी तौक़े नहीं थी। शिवसेना के तर्जुमान और राज्यसभा मेंबर संजय रावत ने बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन को एक ड्रामा करार दिया और इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को हथियार बनाकर उन फिल्मी हस्तियों से सियासी इंतकाम ले रही है जो उनके नजरियात के खिलाफ हैं। उन्होंने फिल्म अदाकारा दीपिका पादुकोण का नाम लिए बगैर कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुए एहतजाज में मुल्क की जिन अहम शख्सियात ने शरीक होकर एहतजाजी तलबा का हौसला बढ़ाया था, आज उन लोगों से इंतकाम लिया जा रहा है। सुशांत सिंह के मामले में जांच पर कोई पेशरफ्त तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन की जांच को लेकर सरगर्मियां कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। इस सिलसिले में आज एनसीबी की टीम ने बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा रकुलप्रीत सिंह से तकरीबन 4 घंटे तक पूछगुछ की है। रकुलप्रीत ने इस बात का इतराफ किया है कि उन्होंने 2018 में ड्रग्स को लेकर रिया चक्रवर्ती से व्हाट्सएप चैटिंग की थी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ड्रग्स का इस्तेमाल कभी नहीं किया। दिल्ली कांग्रेस कमेटी की जानिब से लॉकडाउन में कोरोना वबा की परवाह किए बगैर जान पर खेलकर लोगों की मदद करने वाले तकरीबन 150 कांग्रेसी कारकुनान को बतौर हौसला अफजाई राजीव रतन सम्मान पत्र पेश किया गया। अनिल चौधरी नायब सदर, मदित अग्रवाल, दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की नव मुंतखब सदर अमृता धवन ने सम्मान पत्र पेश किया। अनिल चौधरी ने कहा कि जब वबा शुरू हुई तो इसी वक्त हम लोग इलेक्शन हारे थे, चाहते तो घर बैठे रहते, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा हार जीत से ऊपर उठकर लोगों की मदद करती है और कर रही है और करती रहेगी। हम सब कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, जिसकी जितनी वुसअत और ताकत थी इसके मुताबिक बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गरीबों की मदद की। सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से मरहलेवार उम्रे की अदायगी की इजाज़त देने के बाद हरमैन शरीफीन की जनरल प्रेसिडेंसी ने भी मोतमरीन के मस्जिद हरम में इस्तकबाल के लिए इक़दाम का ऐलान किया है। ज़राए के मुताबिक हरमैन शरीफीन की इंतज़ामिया की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि उम्रा मनासिक की बहाली के बाद मस्जिद हरम में आने वाले मोतमरीन को बेहतरीन और आला मियार की सहूलियात फराहम की जाएगी ताकि इन्हें कोरोना जैसी वबाई अमराज से बचाया जा सके। बयान में कहा गया है कि मस्जिद हरम में दाखिल होने वाले मोतमरीन में बुखार की जाँच और कोरोना की अलामत का पता चलाने के लिए जदीद तरीन HD कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन कैमरों की मदद से मोतमरीन की सेहत के बारे में जानकारी में मदद मिलेगी और इनकी रोशनी में इंतजामिया को मजीद हिफाजती इंतजाम करने होंगे। खलेजी रियासत बहरीन के फरमानरवा अहमद बिन ईसा अल खलीफा ने कहा कि G20 इजलास की सदारत के दौरान सऊदी अरब का इस्तेकाम और भाईचारे के हवाले से किरदार काबिल तहसीन है। इत्तलात के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 75वें इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि इसराइल के साथ अमन मुआहदे का ऐलान अमन के लिए हमारी ख्वाहिश का इजहार है। चीनी हुक्काम ने हालिया बरसों में जिनजियांग सूबे में हजारों मसाजिद को मुस्मार कर दिया है। एक ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक ने आज अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया है। इस रिपोर्ट में चीन के इस इलाके में हुए हुकूक इंसानी की संगीन खिलाफ वर्जियों को उजागर किया गया है। हुकूक इंसानी ग्रुप्स का कहना है कि 10 लाख से जायद यगूर और दूसरे खास तौर पर मुस्लिम बाशिंदों को सारे शुमाल मगरबी इलाके में जेलों और कैंपों में कैद रखा गया है और यहाँ के मकीनों को मजबूर किया जा रहा है कि वो अपनी रिवायती मजहबी रसूमात को तर्क कर दें। थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि हालिया अरसे में चीनी हुकाम की जानिब से तकरीबन 16,000 मसाजिद को या तो मुस्मार कर दिया गया है या फिर नुकसान पहुंचाया गया है। ये रिपोर्ट ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की जानिब से जारी की गई है और इसको सैटेलाइट तस्वीर से तैयार किया गया है। इसमें सैकड़ों मुक़द्दस मुकामात को दिखाया गया है जिन्हें तहस नहस कर दिया गया है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि बेशतर मसाजिद को गुज़िश्ता 3 साल के दौरान बर्बाद किया गया है और तकरीबन 8,500 मसाजिद ऐसी हैं जिन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है और ख़ास तौर पर शहरी इलाकों से बाहरी हुदूद में मसाजिद को ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए TRS पूरी तरह मुतहरिक हो गई है। इस मरतबा 100 से ज़्यादा डिवीजन्स पर कामयाबी का टारगेट मख्तस करते हुए इंतखाबी इलामिया की इजराई से कबल तैयारियों का आगाज़ कर चुके हैं और अपोजिशन जमातों के संभलने से कबल पार्टी उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार करने में मसरूफ़ हो गए हैं। KTR चाहते हैं कि अपोजिशन के खिलाफ ग्रुप बंदियों से भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। अगर अपोजिशन जमातों में कोई ताकतवर उम्मीदवार हों तो इन्हें TRS में शामिल करने का भी मनसूबा तैयार किया गया है। साथ ही TRS के वर्किंग प्रेसिडेंट मुख्तलिफ मज़ाहिब के अहम शख्सियात से भी मुलाकात करते हुए इनके ज़रिए समाज के मुख्तलिफ तबक़ात की पार्टी को तायद हासिल करने में मसरूफ़ है। पार्टी हल्कों में ये भी सुना जा रहा है कि GHMC के क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात भी मुनक़िद हो सकते हैं और दिसंबर के अवाखिर तक इंतखाबी मरहला मुकम्मिल भी हो सकता है।
सरबराह टीआरएस और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 5 साल कबल 2016 में जीएचएमसी इंतखाबात की जिम्मेदारी अपने फर्जंद केटीआर को सौंपी थी। केटीआर ने इस जिम्मेदारी को चैलेंज के तौर पर कबूल किया। 100 बल्दी डिवीजन्स पर कामयाबी हासिल करने की हिकमत अमली तैयार करते हुए पार्टी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए दिन रात मेहनत की और 99 डिवीजन्स पर पार्टी उम्मीदवारों को कामयाब बनाया और 2016 में पहली मरतबा मेयर के ओहदे पर टीआरएस का कब्जा हो गया। इस मरतबा भी केटीआर 100 से ज्यादा बल्दी डिवीजन्स पर कामयाबी का मंसूबा बनाया है। सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने औकाफी अराजियात और जायदादों के रजिस्ट्रेशन रोकने से मुतालिक हुकूमत के अहकामात पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को मुबारकबाद पेश की और कहा कि चीफ मिनिस्टर ने सेक्युलरिज्म और अक़लियत दोस्ती का सबूत देते हुए तारीखी फैसला किया है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मोहम्मद सलीम ने कहा कि हिंदुस्तान के किसी भी चीफ मिनिस्टर ने औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में इस कदर दिलचस्पी नहीं ली जितनी कि केसीआर ने अमली इक़दामात के जरिए संजीदगी का सबूत दिया है। तेलंगाना वजीर बोलती नज़्म व नस्क़ के.टी. रामाराव ने दुर्गम चेरुवू पर तामीर करदा केबल ब्रिज का इफ्तिताह किया। बादशाह उन्होंने ट्वीट करते हुए इंजीनियरिंग के शाहकार दुर्गम चेरुवू केबल ब्रिज को हैदराबाद के अवाम के नाम मानून किया। मोतियों के शहर हैदराबाद के ताज में एक और नगीने का इजाफा हो गया है। ये एशिया का दूसरा और मुल्क का पहला केबल ब्रिज है जिसकी तामीरात पर 184 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस तकरीब में मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी के अलावा रियासती वज़रा टी श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़, सबिता इंद्रा रेड्डी, मेयर हैदराबाद बी राम मोहन, रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी के अलावा दूसरे कायदीन और मुख्तलिफ महकमाजात के अहदेदारों ने शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत का ये बावकार प्रोजेक्ट है। रियासती वजीर केटीआर ने प्रोजेक्ट पर खुसूसी तवज्जो देते हुए अंदरून 2 साल इसकी तामीर को यकीनी बनाया है। 7 ममालिक के इंजीनियर्स ने इस प्रोजेक्ट की तामीर में अपना ताउन पेश किया है। शहर हैदराबाद में लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वबा के दौरान बंद की गई आरटीसी बसों की खिदमत का आगाज कर दिया गया है, लेकिन शहर हैदराबाद में चलाई जा रही जुमला 3200 बसों में सिर्फ 25% बसों के साथ खिदमत का आगाज किया गया। शहर हैदराबाद में कोरोना वायरस लॉकडाउन के साथ ही बस खिदमत को मुअत्तल कर दिया गया था, लेकिन रियासती हुकूमत की जानिब से अजला की खिदमत को बहाल करने के बाद बतदरीज शहर में खिदमत को बहाल करने का फैसला किया गया था। 2 दिन कबल हुकूमत ने तवील मुसाफती बसों को बहाल करने के इक़दाम किए थे और आज शहर के बेशतर तमाम डिपो से 25% बसों के जरिए हमल व नकल का आगाज कर दिया गया। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के बेशतर इलाकों में जुमे की शाम से दोबारा बारिश का आगाज हो चुका है, जिसके सबब मौसम सर्द हो गया है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में हफ्ते की सुबह भी बारिश का सिलसिला जारी है। मजलिस बल्दी आज़िमतर हैदराबाद के अहदेदारों ने फौरी तौर पर हुक्काम को चौकसी इख्तियार करने की हिदायत जारी की और कहा कि शहर हैदराबाद के नशेबी इलाकों पर खुसूसी निगाह रखें और तेज़ बारिश की सूरत में पानी जमा होने पर निकासी के फौरी इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। शहर हैदराबाद में जुमे की शाम के साथ ही मुसलसिल बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके नतीजे में आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी करदा इलामिया के मुताबिक शहर हैदराबाद के अलावा रियासत तेलंगाना के दीगर अजला में आइंदा 3 दिन के दौरान हल्की और तेज़ बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में फौरी असर के साथ बार्स, क्लब्स और टूरिज्म बार्स को खोलने की इजाज़त दे दी है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने इस सिलसिले में अहकामात जारी किए। जिन शराइत के साथ बार्स, क्लब्स और टूरिज्म बार्स खोलने की इजाज़त दी गई, इनमें सेहत और सफाई के इंतजामात, पार्किंग लॉट, क्राउड मैनेजमेंट, हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल, बार स्टाफ और अमले की जानिब से मास्क का इस्तेमाल शामिल है।